Is the PPT visible to you guys? Yes. Yes, भैया. And is it visible if I change the slide? Yes. Yes, yeah. Okay. Yes, So भैया. let's start with today's class. Today we're going to be discussing about proposals and offers, and we're going to be discussing the distinction between express and implied offers and what the law is and how you are to approach these kinds of questions, which are very frequent in your CLAT examination and other law entrance exams. So starting with uh, what the definition of a proposal is, I think we had covered it in our introductory lecture, in our elements of contract. We had covered it, but now we're going to be reading about that in detail. So the proposal is the starting point of the contract. Contract की शुरुआत है proposal. बिना किसी proposal की contract की शुरुआत ही नहीं हो सकती. और इस चीज की डेफिनेशन सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, जो कि डिफाइन करता है प्रपोजल को कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such an act or abstinence, he is said to make a proposal. We had discussed about the complications about this section in the previous class, so we'll be moving ahead with that. So in the first place, it's an expression of the offerer's willingness to do or to abstain from doing something. Secondly, it should be made with the view to obtaining the assent of the offeree to the proposed act or abstinence. ठीक है? एक तो ये एक एक्सप्रेशन है, ये किसी की विलिंगनेस का इजहार कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है उसको कि मैं किसी चीज को करने के लिए विलिंग हूं, और उस चीज के द्वारा आप दूसरे वाली पार्टी से कुछ कार्य करवा रहे हो. इस चीज का बेसिक मतलब ये है. सेकेंडली, इट शुड बी मेड विद द व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द ऑफरी टू द प्रपोज्ड एक्ट और एब्सटेनेंस. ठीक है? Who makes the proposal is called the promiser or the offerer. These things are the same. They convey the same meaning. I'm sorry. They convey the same meaning. And to whom it is made, proposee or offeree. तो जिसको किया जा रहा है ये ऑफर, वो प्रपोजी है या ऑफरी है, सेम चीज, मतलब सेम है. और जब इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है वो प्रोमिसी होता है. फेयरली सिंपल. ये जो लास्ट के 3 पॉइंट्स है, एक बार देख लो, अपने दिमाग में बिठा लो एक बार, और फिर हम आगे बढ़ते हैं. कैन आई मूव अहेड? सबने देख लिया 3 पॉइंट्स? यस भैया. ओके. कोई प्लीज वॉलंटियर कर सकता है ये क्वेश्चन पढ़ने के लिए, और पढ़ेगा कोई और समझाएगा कोई और. इंग्लिश में पढ़ना है और किसी और को समझाना है. ओके भैया. ओके. बोलो बोलो. A conveys to B on 4th January his willingness to sell a PS5 for rupees 50,000. On 5th January, B discusses with his wife C whether he could proceed with these purchase. C gets agitated at this propositions and refuses to talk to B for a week. B calls A क्या है ये and describes the situations, and on 13th January A reaches their home in order to mediate the situation and also sell his PS5. A convinces C by conveying to B that थोड़ा देर चुप रहोगे तुम लोग. A reaches their home in order to mediate the situation and also sell his PS5. A convinces C by conveying to B that if B purchases the PS5, he shall give him a laptop for free along with it. C agrees and B agrees instantaneously. Identify the promiser, proposee, offeree. Also identify the date on which they become the same. ओके. Sorry, Bhaiya, for the inconvenience. अरे कोई नहीं. मेरे साथ भी होता रहता है ये सब. ऑनलाइन मीडियम है, ये सब इज एक्सेप्टेबल. आप इसकी चिंता मत करो.
who will explain what the scenario is? Bhaiya, may I volunteer? हाँ, बताओ. Bhaiya, here. Also tell me your name, हाँ. It's not visible in. Bhaiya, I'm Gautami. हाँ जी, बताइए गौतमी. हाँ भैया, इसमें बोला गया है कि so first of all here A is the promiser, B is the promisee. A is the promiser and B is the promisee. On the 4th of January, A is giving a proposal to B on his willingness of selling a PS5 worth rupees 50,000. And the very next day, B discusses this thing with his wife C, and after that C is opposing the proposal of A. And as a result of this, C is not talking with B for a week, and after that, after that, B calls A and describes the situation, like C is not agreeing with this thing. So A reaches to their home on same day, which is 13th of January, and he convinces C through B to buy this. And to make this proposal on his favor, A also gives them offer of giving a laptop free along with this PS5. And after listening to this, C agrees, and as a result, B also agrees. Okay. तो आपने बोला कि A is the promiser and B is the promisee. So yes. What category can we put C inside here? C is the third party. Okay. So, but don't you think that A convinces C by conveying to B that if B purchases the land, so C तो convince हो रहा है और C को भी तो promise जारी है A के द्वारा. But here the main proposal was made between A and B, and okay. C being B's wife comes into the frame. Okay. Good. So you have identified the promiser and the promisee. Yes. And you've identified the fact that C is a third party and can't be considered a promisee. Yes. Despite the fact that she was involved in this entire situation, and without her consent, there could not have been this entire deal. They could have proceeded with it. So good. But now tell me the date. You or anyone else? It's an open thing. Okay, so should I go with it? Does anyone want to volunteer to tell me the date? Sure, I'll just put down. It can be 13th, I'm not sure. Okay. Why not 4th? Because A conveyed it on 4th. But C agrees and B agrees on 30th January. That's why. Fine, but in our definition, proposal is the starting point of the contract. When one person signifies to another his willingness, ठीक है? ये willingness कब हुई थी? ये तो 4th को हुई थी और starting point तो 4th को थी. तो आप 13th क्यों कह रहे हो? भैया, may I take the initiative? नाम भी बताओ प्लीज. दिखाई नहीं दे रहा. गीतिका. ओके, बताओ. भैया, वो जो पहला वाला प्रपोजल था वो था सिर्फ PS4 के लिए, लेकिन जब सेकंड प्रपोजल जो 13th को दिया गया था वो प्रपोजल PS4 के साथ लैपटॉप का भी था और उसी में एग्री हुआ और उसी से कॉन्ट्रैक्ट बना है, इसलिए. गुड. तो आप कहना चाहती हो कि नए ऑफर आने के बाद पुराना ऑफर एक्सटिंग्विश हो गया? हाँ भैया. अब वो वैलिड ऑफर नहीं है फॉर द पर्पसेस ऑफ आवर कॉन्ट्रैक्ट, तो वो अब डिलीट हो गया. लेकिन ये डिलीट नहीं हुआ. ये तब मतलब यूजुअली क्या होता है कि कोई मना कर देता है तो डिलीट हो जाता है पहला वाला ऑफर, मतलब एक्सटिंग्विश हो जाता है, उसको हम मानते नहीं है. पर इस केस में मना नहीं किया बी ने, उसने बस टाइम के लिए मांगा और अपनी बीवी के साथ उसने बात किया, ठीक है. और ना ही जब उसने कॉल किया तब उसने बताया नहीं कि मैं मना कर रहा हूं. पर फिर भी आप कह रही हो कि ये एक नया ऑफर है जो कि और पुराना ऑफर खत्म हो चुका है. ऐसा कैसे हो सकता है? भैया, नया ऑफर नहीं है लेकिन उसमें एक और कंडीशन ऐड कर दी गई है. ओके, गुड.
So this contract, this offer was extinguished because there was a novation in the terms of the contract, and the contract is now materially different from what it was originally, the offer. तो ये आपने अच्छा इस चीज का वो निकाला है, सोल्यूशन निकाला है, सारे पॉइंट्स कवर हो गए. आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रोमिसर और प्रोमिसी कौन है, और सी क्यों नहीं है, कि थर्ड पार्टी जब इन्वॉल्व होता है तो उसको हम मानते नहीं है कॉन्ट्रेक्चुअल सेंस में कुछ. और आपने ये पता किया कि जब एक नया ऑफर आता है जो कि मटेरियली अलग है पहले ऑफर से, कि उसके टर्म्स अलग है, तो पुराना वाला ऑफर ceases to exist and the new offer comes into play, and the date on which the new offer was made would be considered to be the date on which the whole process of the contract began, because we have to discard what happened before because there were new circumstances. So can someone again summarize the legal principles that we discovered from this question? The person who makes a promise is promiser. The person to whom promise is made is promisee. Third party cannot be involved in a like although another person is in the frame, but he or she will be considered third party and not a direct person involved in the contract. And the day when the contract is being the day when the both party agrees for the proposed, that's the day which has to be considered as a day of contract. Good. What's your name? I'm sorry. Gautami. Acha, Gautami. I'm sorry. I'm very It's okay. bad. It's okay, sir. Yeah. So any doubts with respect to this problem scenario or the principles that we summarized, or can we move ahead? Someone raised your, I can't, it's not visible to me if you're raising your hand. Yes, Bhaiya. Bhaiya, actually. Just speak. हाँ. Say your name and speak. Yes, Bhaiya. Bhaiya, I'm Sneha. Bhaiya, can we take this example as we had discussed in the previous class, जहाँ पर भैया मतलब थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो बच्चा लेस के पैकेट लेने जाता है पर पैसे उसके पापा देते हैं, तो यहाँ पे सी को मतलब उससे कंपेयर कर सकते हैं, मतलब एज अ थर्ड पार्टी. हाँ, कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड है, लेकिन वो वाला एग्जांपल ज्यादा कॉन्क्रीट है उस चीज, उस कॉन्सेप्ट को करने But Bhaiya, will it not come under to the exceptions of contract? I mean, in which conditions another person can be also considered as the main direct involved person in the contract rather than being a third won't party? be that case. This won't be that case because there is no benefit that is being conferred onto C by this arrangement directly. Of course, the laptop will be there, but the standard that is said in the privity of contract concept, again, we'll be discussing that at length. But for now, what I'm saying is that ये जो स्टैंडर्ड है जो कोर्ट देखता है कि अगर कोई कन्फर्ड बेनिफिट है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही जो कि किसी थर्ड पार्टी को बेनिफिट कर रहा होता है और उस थर्ड पार्टी को इस चीज के बारे में नॉलेज होती है, तो फिर वो थर्ड पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है. ये है एक एक्सेप्शन प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्ट्रिन में. So Bhaiya, can we consider a situation where a policy is being made, like a person goes to the bank and makes a policy, insurance policy, and keeps his son as his nominee? Definitely. So that situation will be considered as nominee is the perfect example in which the nominee can approach the court to enforce the contract. Despite the fact, क्योंकि देखो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में डिस्प्यूट होता है इंश्योरेंस के, लाइफ इंश्योरेंस के, ठीक है, और लाइफ इंश्योरेंस तभी तो मिलती है जब इंसान मर जाता है. तो भैया, some students are waiting in the waiting room. Okay, 1 minute. I'll just admit all of them.
Are you guys there? Yes, Garvit. Yes, Bhaiya, I'm sorry, but I just missed one, I think 1-2 minutes in between the explanation. I have a doubt like this, the C in the passage, the person who is C, is a Yeah, promisee or a third party? we discussed that at length, and I'm sorry that you missed it. But can someone explain ki what I explained so that आपका भी knowledge refresh हो जाए? No, maybe you can just tell in short only. I mean, No, no, still no. be okay. I want this as an exercise for other people, ना. रिपीट कर दो कोई. मैंने क्या बोला सी के बारे में कि सी कैसे इन्वॉल्व होगा. हाँ गौतमी, आप ही बोलो. So C basically here acts as a third party because C is not directly involved in the contract, but being comes into the frame being B's wife. So we can say that the influence of C is there in the contract, but not direct. So C here acts as a third party, and B and A acts as direct person in the party. वेरी गुड गौतमी, वेरी गुड. गर्वित समझ गए ना आप या कोई और डाउट है आपके मन में? So, Bhaiya, like that just A come to B and B and second he come to B and C for the with a new proposal of PS5 and laptop. So he include one laptop in that proposal. So it's been a new proposal, right? Or maybe the Been a new proposal, but read the lines carefully. A convinces C by conveying to B. So his conveyance was to B, not to C. All right. Yes. That's why Yeah, got it. B was the one who was motivated by the contract in the legal sense. Of course, C भी motivate हुई तभी जाके तो वो agree करा ना उसने अपने पति के साथ कि मेरे को PS5 चाहिए. पर लीगल सेंस में क्योंकि डायरेक्ट ऑफर बी को था और इनडायरेक्टली ये ऑफर सी को कन्वे हुआ, इसलिए फॉर द पर्पसेस ऑफ आवर एग्जांपल द प्रपोजी इन दिस केस इज बी एंड नॉट सी. ऑलराइट, नाउ आई विल बी मूविंग अहेड विद द टॉपिक. इट इज कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ प्रपोजल इज कंप्लीटेड बाय द एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट टू द अदर पार्टी. ये जो प्रपोजल बनाने का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ये तब कंप्लीट होती है जब दूसरे पार्टी को ये बात कन्वे की जाती है, कम्युनिकेट की जाती है, जब दूसरे पार्टी को इस बात का ज्ञान दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, राइटिंग और इवन बाय कॉन्डक्ट. सो वर्ड्स ऑफ माउथ एंड राइटिंग आर simple to determine because they are clear. Words make language very easy, communication very easy because there are defined meanings of what words are. Like if I'm saying what I'm saying to you right now, you guys, all of you understand English, and I say this in Australia, then both of you will understand the same thing. But sometimes there are certain gestures or certain conducts that are interpreted differently in different places in different circumstances. So that is an area that is very complicated for our understanding of how the communication happens, communication of the proposal. So implied proposals are implied का मतलब है कि ये इन्फर किया जा सकता है, ये बिल्कुल ही डायरेक्ट नहीं है. एक्सप्लिसिट ये होता है कि बिल्कुल ही क्लियर है कि this thing is explicit in the passage and some things are implicit in the passage. It requires you to apply a certain higher degree of cognition to it to derive a conclusion. It's not कि सीधा सीधा उसका जवाब आपको मिल रहा है. आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए, आप अपनी सूझबूझ का प्रयोग करते हुए किसी चीज को आपको समझना होता है और तब वो जाके implicit होता है. So these implied proposals need not always be formal. Neither does the law of contract nor of sale of goods require that consent to a contract must be in writing. Writing का होना law के अंदर जरूरी नहीं है कि हर कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में हो. होता है तो प्रेफर करता है कोर्ट, क्योंकि उससे एक प्रूफ मिल जाता है कि आपने इस चीज पे दस्तखत किया है, इसका मतलब आप इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होना चाहते थे. बट लॉ इज not changed by the fact that it was a verbal contract. It's just that the method of proving
that this contract actually took place is a bit more onerous. You have to involve more steps like getting witnesses to attest to the fact that this contract took place and many other things. So section 9 says that proposal made in words is express, ठीक है, and other than in words is implied. मतलब अगर आपने कोई प्रपोजल वर्ड्स के द्वारा कन्वे किया तो ये एक्सप्रेस है, मतलब आपने क्लियरली बोल दिया कि मेरे को ये आपको ऑफर करना है, तो ये एक्सप्रेस हो गया. और अगर वर्ड्स से हट के कुछ है, या तो आपने कोई कॉन्डक्ट, आपने कोई जेस्चर किया, या फिर आपने ऐसा कोई काम किया जिससे कि एक रीजनेबल आदमी ये इन्फर कर सके कि इस प्रपोजल का ये मतलब है और इससे कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं लोग, तो उस केस में ये इम्प्लाइड हो जाएगा. और ये आपने एक डॉक्ट्रिन आपने देखा होगा, मीटिंग ऑफ द माइंड्स. मीटिंग ऑफ द माइंड्स मींस कंसेंसस एड आइडम, व्हिच इज अ लैटिन टर्म व्हिच मींस दैट पीपल शुड अग्री टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस. मतलब सेम चीज के ऊपर आप अग्री कर रहे हो और उसका मतलब भी आप सेम निकाल रहे हो. कुछ केसेस में कुछ एम्बिग्विटीज होती है इंटरप्रिटेशन करने में, और कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड माना जाएगा जब दोनों पार्टी सेम चीज के बारे में अग्री कर रहे होते हैं. जैसे एक फेमस केस है या क्वेश्चन है ये नहीं पता, मतलब क्लैट का क्वेश्चन है या एक्चुअली कोई केस हुआ था ऐसे. क्या हुआ था कि कुछ अलग अलग वैरायटीज के बैरल्स ऑफ ऑयल थे एक मर्चेंट के पास, लेकिन जो बायर था उसके मन में कोई एक कलर था, मतलब एक वेरिएंट था, और बायर के मन में जो बेचना था वो अलग वेरिएंट था. तो इस केस में मीटिंग ऑफ द माइंड्स नहीं हो पाई, क्योंकि मतलब आप सेम चीज को सेम सेंस में अग्री नहीं कर रहे हो, तो आप कैसे किसी को कंपेल कर सकते हो कि तू यही बेच जबकि उसको ये नहीं बेचना था, और तू यही खरीद जबकि उसको ये नहीं खरीदना था. तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट इस चीज का, जो कि आपके आगे के क्वेश्चन में हेल्प करेगा. आगे के क्वेश्चन में बढ़ने से पहले कोई डाउट है तो आप अभी रेज कर सकते हैं. कोई है डाउट? नो भैया. आगे बढ़ू? यस भैया. ओके. और ये मैंने पीपीटी आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया है, तो आपको अगर नोट्स बनाने हैं तो आप उसको रेफर कर सकते हो. मैं क्लास से मतलब फॉरवर्ड ले रहा हूँ क्लास को, आप नोट्स अपने फोन से भी बना सकते हो बाद में या कभी भी बनाना. सेम थिंग, कोई पढ़ेगा और दूसरा कोई समझाएगा और सॉल्व करने की कोशिश करेगा. ये थोड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है, पर आप फिर भी अटेम्प्ट करो इस चीज को. कौन वॉलंटियर कर रहा है? आप जस्ट अपना अनम्यूट करके आप अपना नाम बोल के पढ़ाई शुरू करो. कौन था वो? गौतमी. हाँ जी, बोलिए आप. गौतमी सबसे ज्यादा एक्टिव है आज, बाकियों को क्या मजा नहीं आ रहा क्या आज क्लास में? Shall I, भैया? हाँ, you may, since no one else is volunteering. Ramu enters Aam Gutliyo ke Dam auction house. The standard practice at auction house is that if one raises the placard kept on the table in response to auctioneer's calls, he is deemed to have placed a bid, an offer. Ramu, being from a rural background, is unaware of this practice, and seeing other cheer for the people raising their placards, he started raising the one in his table too. When no other person raises the placard on the call for rupees 1 lakh for an antique wristwatch, Ramu is declared to have won the bid. Ramu now refuses to pay. Decide. ओके, कोई समझाओ क्या चल रहा है केस में? हाँ, जिसने भी रेज किया आप बताओ. Yes, Bhaiya, I agree with you. हाँ. So there was Ramu, and he was his. एक मिनट, हाँ, just 1 minute.
Is someone okay? हाँ, गर्वित थे ना? Yes, भैया. हाँ, पढ़ो, मतलब समझाओ. So भैया, there was a Ramu, and he was just I don't know how he reached there, but there was an auction going on, which was आम ही आम गुठलियों के दाम. So means in the auction there was like one has to raise the play card. Means play card means it's like a bid we can place for anything we want to have. And I think everyone is familiar with the auction. What is auction? And but he was not familiar with that. He don't know what is auction, and he was from a rural background. And it's simply given here that he's unaware of this practice, and he just look at others, and others are cheering for people who are raising the play card. And he also think like if others are raising play card, let me do also because I've been also praised for that. He think like in that way. He started raising the one on the table which was there, and there was an auction going on for antique watch which was worth 1 lakh. And he plays the play card, and no one else plays that play card. So the auctioneer who was auctioning that at the table, and he just declared it to be Ramu because Ramu has raised the play card. And as he has raised the play card, it was the auction declaring that the watch is for of Ramu. Now Ramu said that he refused the payment because as it is given that he did not know what is actually the auction things are. Good. So, what is according to you? What should be the result of this case? Should he be forced to pay, or should he like have the ability to refuse to pay? Yes, So yeah, whoever is. हाँ, बोलो. he can refuse to pay because it is given like he is not aware of that Okay. auction methods, so he So, can refuse. him not being aware is related to which principle that we discussed? आप नहीं बोल सकते तो कोई और बोलो. क्या रिलेशन है उसके अवेयर ना होने से लॉ के अंडर? क्या रिलेशन है? गर्वित. Yeah, I'm sorry, I don't know the answer. अच्छा, कोई और ट्राई कर सकता है? करो, अनम्यूट करके करो ट्राई. कौन सा? भैया हम्म. भैया consensus adadim, that is Good. meeting of mind. Good. Exactly. So, you're saying that consensus ad idem is violated because the auctioneers and Ramu did not agree to the same thing in the same sense. That is your understanding. Yes, But भैया. but there can be a contrary view to this, that in the last class Chitranshit had, and I think someone else also had, कि it is reasonably understood that this is a practice and उसके क्या consequences है कि अगर मैं पैकर्ड लेस कर रहा हूँ, तो उस चीज से आप क्या रिस्पॉन्स देना चाहोगे? आप फिर भी मानते हो इस चीज को कि कंसेंसस एड आइटम नहीं था, या आप कुछ और मानते हो? भैया कभी रीजनेबल मैन के अकॉर्डिंग चले देन रामू विल हैव टू पे. Okay, but Bhaiya, but here the game changes when it's written that he comes from a rural background. exactly. So when it's already stated he comes from a rural background, so already an exception arises, and that's the reason he cannot be forced to pay the bit. Yes. This is also my understanding of the situation. However, there are some disagreements to this, and I will place them before you, and it is up to you to decide which one is the correct understanding.
one understanding that was raised. Okay, we'll discuss how this case is different from the subsequent case. But if you consider just the principles that I said to you and the fact scenario here, not looking at any other law, just looking at the law of contract and seeing all of this, then we can arrive at the conclusion that yes, there was no consensus ad item and Ramu can refuse to pay the payment. Is there any other contention or doubt that is arising in your mind? Ask. Bhaiya, as I only said that it's given that he's from rural background and the thing. So, can we say that this thing is that this thing cannot be like when he placed the bid and this thing happened? So, can we consider is that a void ab initio or void? Void ab initio. See, it's not even an agreement, let alone a void agreement, because for it to be void, there must be first you have to establish कि proposal थी और acceptance थी उस proposal की और consideration था, और फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि लीगल है या नहीं है. तो ये एनफोर्स नहीं हो सकता कोर्ट में क्योंकि ये अग्रीमेंट है ही नहीं. तो इसको वॉइड, वॉइडेबल और वैलिड वाले लेंस में नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये एक अग्रीमेंट ही नहीं है, क्योंकि प्रपोजल इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन अग्रीमेंट. ओके, this is the traditional understanding of what it is, but now we will be discussing another case. Okay, this is a real case. See, these two were fictitious cases. I said 4th January because 4th January is my birthday, and this was just random. I just thought about it while reading up on this topic. So these cases can be debated. Like, it hasn't actually happened. I mean, I'm not sure whether it has happened. Question 2 is definitely like it hasn't happened, because very unlikely that a person from a rural background will enter into an auction house, because auctioneering is a very elite kind of activity. There's a dress code, there are a lot of things, and you have to probably sign a form saying that if you are participating in this, you are agreeing to the rules. But we are just not getting into all of those complications. We're just looking at it from a simple example. क्योंकि क्लैट में क्या है, आपको ऐसे ही सिंपल एग्जांपल्स देंगे और आप जितना अपना एक्सटर्नल नॉलेज अप्लाई करोगे उतना फंसते जाओगे. So the point of this whole exercise is to make you aware of the fact that a lot of situations are created by professors who are trying to test you only on the basis of what is being said, no external application of knowledge. And Faizan Mustafa sir, my vice chancellor, has made it clear in his various videos that they want lawyers who are thinking on the spot and not people who have memorized things. But there are certain cases that are important for you to know, and one of these cases is this: Upton on 7 RDC versus Powell. Read this and someone else explain. Shall I? Yeah, say your name and explain. Yes, Bhaiya. Sneha here. Sneha. Okay, Bhaiya. A fire broke out of in the defendant's farm. He believed that he was entitled to the free services of Upton Fire Brigade and therefore summoned it. The brigade put out the fire. It then turned out the defendant's farm was not within the free service zone of Upton, which therefore claimed compensation for the services. Okay. Now someone else explain what is happening. May I explain? Explain. तो इसमें यह है कि आग लग गई किसी के फार्म में, तो उसे ये था कि उसे जो अपटन फायर ब्रिगेड है उससे फ्री सर्विसेज मिल, लाइक ही इज एंटाइटल्ड टू हैव दैट. तो उसने उन्हें बुला लिया, तो ब्रिगेड ने फायर तो बुझा दी, पर बाद में ये मतलब निकला कि जो उसका फार्म था वो जो फ्री सर्विस जोन था उनका ब्रिगेड वालों का, तो उसमें वो कवर नहीं होता था.
तो ठीक है। उन्होंने बाद में कंपनसेशन मांगी फायर बुझाने के लिए कि पैसे दो हमें। ओके, तो आपको क्या लगता है इस केस में क्या होना चाहिए? आप अगर जज होती तो आप क्या डिसीजन लेती? क्या उसको पैसे भरने चाहिए थे या नहीं भरने चाहिए? भरने चाहिए थे भैया। भरने चाहिए थे भैया। क्यों भरने चाहिए था? भैया पिछले यहाँ केस पे में तो उसको पता नहीं था पर उसने नहीं भरा, इस केस में उसको पता नहीं है तो वो इस बार क्यों भरेगा? क्योंकि भैया यहाँ पे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इम्प्लाइड होना चाहिए था जो चीज़, वो नहीं है यहाँ पे, और उसने खुद से एज्यूम कर लिया है इस चीज़ को। ओके, और कोई रीजन जो आपके मन में आ रहा हो? आप नहीं, मतलब कोई और भी? भैया बट जनरली इट इज टोल्ड कि अगर आप ऐसा कुछ इंस्टेंसेस होता है तो लाइक उसका प्रायर नॉलेज होना चाहिए उस चीज का। इफ प्रायर नॉलेज है स्टिल द इफ यहाँ पे इस जगह पे अगर डिफेंडेंट को प्रायर नॉलेज था कि उसका जो एरिया है वो जोन में नहीं आता है, वो फ्री सर्विस जोन में नहीं आता है, हाँ, फिर भी अगर उसको पता होने के बाद भी अगर वो ऐसा करता तो दे कुड हैव बीन आस्क्ड कंपनसेशन ना, बट उसको अगर पता नहीं है तो गुड ही इज नॉट लायबल फॉर कंपनसेशन। good. You are saying you are thinking on the lines of knowledge of what is happening and there has been a Yes, mistake as to the knowledge of what is happening. yes, yes. ठीक है? So you have raised valid considerations, all of you. आपके रीजंस बिल्कुल सही है, लेकिन अभी हमको देखना है कि कोर्ट की क्या रूलिंग थी। ठीक है, अब पढ़ो कोई कोर्ट का रूलिंग, कोई अलग इंसान, ताकि आप भी अपना दिमाग खर्चो थोड़ा, क्या है समझाओ, क्या कहना चाह रहे हैं कोर्ट साहब, जज साहब सॉरी, या साहिबा, पता नहीं मेरे को कौन थे। So the truth of the matter is that the defendant wanted the service of Upton. In response to that request, provided services. Hence, the services rendered were rendered on an implied promise to pay them. ओके, तो इससे आपको क्या पता लगता है कोर्ट ने क्या लॉजिक दी है उसको पैसे भरवाने के लिए? बताओ, सिंपल है। हाँ बताओ बताओ। भैया मैं ट्राई करके देखूं। हाँ हाँ बताओ। अरे ट्राई करना है सबको, कोई हम जज थोड़ी है। हाँ बताओ। जैसे भैया हम अगर कहीं दुकान पर जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी सर्विसेज के लिए अगर हम जाते हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में गए फॉर सर्विसेज के लिए और हमें वहाँ पे सर्विसेज मिलना शुरू हो गई है, तो इट्स इम्प्लाइड कि हमें उन्हें पे भी करना पड़ेगा, तभी वो हमें एज अ कंसिडरेशन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो आप कह रही हो कि कोई सर्विस प्रोवाइड हुआ है इस केस में, जो कि इम्प्लाइड है कि ये एक सर्विस पैसों के लिए प्रोवाइड होगा। ठीक है, बट अभी किसी ने ये पॉइंट रेज किया था कि एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है, क्या मिस्टेक, एक मिस्टेक हुआ है जिसके वजह से नॉलेज नहीं थी इस आदमी को कि ये उस फ्री सर्विस जोन में आता है या नहीं आता, और तभी जाके वो कह रहा है कि मेरे को पैसे नहीं भरने। ठीक है, और हमने जो रामू वाला एग्जांपल था उसमें भी हमने ये किया था कि नॉलेज नहीं थी उस बंदे को, तो फिर उस नॉलेज की कमी के कारण वो पैसा नहीं भर सकता। वो पैसा अगर वो चाहे तो ना भरे तो भी ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, दो एक डिस्टिंक्शन क्रिएट हो रहा है जो कि चित्रांशित और मैंने इस चीज पे डिबेट किया था थोड़ा, और उस डिबेट का क्या नतीजा है वो हम आज के डिबेट में पता करेंगे कि क्या ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट था या मिस्टेक ऑफ लॉ है।
क्योंकि मिस्टेक ऑफ लॉ जब होता है तब कोई एक्सक्यूज नहीं चलता है, लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट जब होता है तब चलता है। तो क्या ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है या मिस्टेक ऑफ लॉ है? अब आप अपना दिमाग लगाओ और पता करो कि क्या है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट। कौन से वाले केस में? ये वाले केस में? हाँ जी, इसीलिए। क्यों मिस्टेक ऑफ? अच्छा, आप जब कह रहे हो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, तो आपका तात्पर्य क्या है मिस्टेक ऑफ फैक्ट से, और वो उसका डिफरेंस क्या है मिस्टेक ऑफ लॉ से? आप भी कह सकते हो, कोई और भी कह सकता है। पिच इन, जस्ट इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनीवन, जस्ट से। मिस्टेक ऑफ लॉ तो हम लाइक तब कहेंगे ना व्हेन ही इज इग्नोरेंट ऑफ सम लॉ, मतलब जब उसने कोई लॉ को इग्नोर किया हो। ओके, तो यहाँ पे आई डोंट थिंक उसने किसी प्रॉपर लॉ को इग्नोर किया। ओके, बट फायर सर्विसेज किसके अंडर आती है? गवर्नमेंट होती है या प्राइवेट होती है? गवर्नमेंट। और जब गवर्नमेंट होती है, लॉ होता है या नहीं होता? क्योंकि बिना लॉ के क्या गवर्नमेंट की कोई एजेंसी काम कर सकती है बिना किसी स्टैट्यूट के? बिना स्टैट्यूट, बिना रेगुलेशन, बिना किसी, नहीं हो सकता। और कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जो कि कहता होगा कि ये फ्री सर्विस जोन है और ये फ्री सर्विस जोन नहीं है। और दूसरी बात, सिंस ये एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर है, जिस एरिया में ये अपटन मतलब जिस एरिया में इस बंदे का फार्म है, वो किसी एक फायर डिपार्टमेंट के फ्री जोन के अंदर आता होगा, और उस चीज को जानने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बंदे के ऊपर है, ना कि फायर डिपार्टमेंट के, कि वो बताए कि हमारा फ्री सर्विस जोन नहीं है, हमको पैसे भरने पड़ेंगे। जबकि आइडियली बताना चाहिए, आइडियली तो बताना चाहिए कि भैया आप अपटन में फोन कर रहे हो, लेकिन हमारा अगर वहां पे जाएंगे तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, फ्री नहीं है। उनको वो बताना चाहिए था, नॉट लीगली बट मॉरली। बट लीगल ड्यूटी पता करने की सर्विस जिसको मिल रही है उसकी है, नॉट की सर्विस प्रोवाइडर की है। तो इसलिए मेरा ये मानना है, और कोर्ट का भी ये मानना होगा, इसलिए उन्होंने ये रूलिंग दी कि एक तो सर्विसेज रेंडर करी गई हैं। रामू वाले एग्जांपल में कोई सर्विस रेंडर नहीं की गई थी, बस एक बातों के ऊपर चल रहा था कि प्लाकार्ड प्लाकार्ड प्लाकार्ड। इसमें एक्चुअली वो आए, उन्होंने कुछ खर्च किया, अपना पानी खर्च किया होगा, अपने लेबरर्स दिए होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, कुछ मटेरियल्स भी यूज किया होगा। तो एक तो सर्विसेज और कुछ प्रोडक्ट्स उसमें इन्वॉल्व होंगे, वो रेंडर किए गए हैं। और दूसरी बात कि एक मिस्टेक ऑफ लॉ था, एक्चुअली मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं था, कि एक गवर्नमेंट के बॉडी के सर्विसेज आप ले रहे हो और उस गवर्नमेंटल बॉडी के पीछे कोई स्टैट्यूट का मतलब समझते हो, कोई एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या एक्ट ऑफ जो भी स्टेट है या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसका कोई एक्ट होगा या कोई रेगुलेशन होगा, बाय लॉ होगा, कुछ होगा जिसके अंडर ये फ्री जोन के अंदर नहीं आता। और उस चीज को ना जानने की वजह से उसने ऐसा एक डिसीजन लिया, और वो कह रहा है कि मैं पैसे नहीं भरूंगा। ठीक है, तो कोर्ट की ये रीजन थी। आप अगर अग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, अब बताओ कि आप अग्री करते हो या नहीं करते हो? अग्रीड भैया। अग्री करते हो? भैया कोई डिसएग्री करने वाला है? आई हैव अ डाउट। हाँ, आज हम मतलब इसमें जैसे उन्होंने हमें स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ कि जो वो फायर ब्रिगेड सर्विस थी वो लाइक प्राइवेट थी या गवर्नमेंट के अंदर थी। लाइक प्राइवेट भी तो हो सकती है ना? हो सकती है, लेकिन यूजुअली नहीं होता। लाइक अगर हमें जैसे होता है कि हमने बात से अपनी नॉलेज नहीं लगानी। हाँ, तो नहीं लगानी, अगर वो ठीक है। मैं देखो, आपको इसमें घुसना ही नहीं था, एक्चुअली आपको घुसना ही नहीं था कि पब्लिक है या प्राइवेट है। लेकिन
चित्रांशित ने पिछले क्लास में ये बोला कि ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो इसलिए एक्सक्यूजेबल है, ठीक है, लेकिन मैंने ये जस्टिफाई किया कि ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं है, मिस्टेक ऑफ लॉ है। लेकिन आप पहले ही चीज पे रुक सकते हो कि एक सर्विसेज रेंडर हो गए थे, उसने कुछ किया था। जैसे कि आप बताओ, आप अगर ऑटो लेने बैठे हो, ऑटो रिक्शा लेने बैठे हो, आप खड़े हो रोड पे और आप बैठ जाते हो ऑटो में, बोलते हो चलो सरोजनी नगर लेके जा, तो वो तो ऑब्वियसली पैसों के बदले लेके जाएगा, ये एक ऑब्वियस चीज है कि वो पैसों से लेके जाएगा। ये भी वैसा ही है कि ऑब्वियस है कि अगर इतने दूर से आ रहा है, क्योंकि जो बंदा अपटन फायर को बुला रहा है उसको पता होगा क्या डिस्टेंस है अपटन और उसके फार्म के बीच में, और तो ये इस बेसिस पे रीजनेबली कंक्लूड कर सकता है कि इतने दूर से आ रहे हैं तो ये फ्री सर्विस जोन नहीं होगा, पैसे दे के ही आएंगे। मतलब अगर पता नहीं है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पता करने की, रीजनेबल मीन से वो पता कर सकता है। हेंस इस केस की ये रूलिंग है। अगेन ये भी डिबेटेबल चीज है, आप अपना इंटरप्रिटेशन लगा सकते हो, पर रूलिंग ये है। क्या आपको पहले सिचुएशन में, रामू वाले एग्जांपल में और इसमें फर्क आपको समझ में आ रहा है? आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो सारे? मतलब भैया वो वाले सिचुएशन में मिस्टेक ऑफ फैक्ट थी, इसमें मिस्टेक ऑफ लॉ है, सो मिस्टेक ऑफ लॉ कैन नॉट बी इग्नोर्ड बट द मिस्टेक ऑफ one secondary reason, that is the secondary reason. Main reason is that firstly that it is an implied promise because it is understood कि इतने दूर से आ रहे हो, यहाँ से आ रहे हो, वहां से आ रहे हो, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सिटीजन की पता करने के लिए कि उसका फ्री जोन कहाँ पड़ता है। अब एंड भैया मोर ओवर ऐसे सिचुएशन में कंसिडरेशन इज नीडेड। उस मतलब जैसे आपने कहा था कि वहां पे तो खाली बातें हुई थी, कुछ कंसिडरेशन नहीं था, बट यहाँ पे तो वो लोग आके उसका आग बुझाए एंड देन दे वर आस्किंग फॉर मनी। कुछ सर्विस रेंडर किया था उन्होंने, अपना खर्चा किया, तो कोर्ट ने भी ये डिसाइड किया होगा कि यार इन्होंने कुछ किया है, सर्विस तो दिया एक्चुअली, तो उस केस में उसकी भरपाई करनी होगी। ऐसा नहीं है कि उसका फार्म जले और ये लोग इतनी वो करे और अपना पैसा खर्च करे और डूब जाए वो पैसा। तो ये है इसका अंडरस्टैंडिंग। अभी कोई पीपीटी से डाउट है या कोई और डाउट है पूछ सकते हो। अभी मैं स्टॉप शेयरिंग कर सकता हूँ अभी, या किसी को कुछ रेफर करना है? I'm doing stop sharing now. Oh, sorry bro, चिरकांशित, सॉरी। करेक्ट भैया, करेक्ट। क्या है मतलब चिरकांशित का? चिरकांशित, yeah, which is desirable for a long time. Oh, nice meaning. चिरकांशित, I'll call you चिरकांशित only, not बुलानी। I'm sorry, वो चित्रांशित पता नहीं क्यों, चिरकांशित, सॉरी। आपको पहले ही करेक्ट कर लेना चाहिए था। 3-4 क्लासेस हो गए मैं चित्रांशित बुला रहा हूँ आपको। भैया मैं अभी मीट में था नहीं, मैंने ज्वाइन ही इसलिए किया। अच्छा, ओके। मुझे बाकी बच्चों ने बताया कि नेम का मिसप्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो मैंने ज्वाइन किया फिर। अच्छा, ओके। He has a cute name. Yes, he has a very cute name. Chirkankshit. Nice. Is it a Sanskrit name or is it? भैया है वो हिंदी में ही। अच्छा। और कोई है जिसका कोई यूनिक नेम है? भैया हाँ गर्वित, यूनिक नहीं है यार। भैया मैं डाउट बोल रहा हूँ। डाउट। हाँ पता है, बोलो। So भैया, like you said on the first lecture, like you should develop a way of thinking for a legal section. And my institute, the teachers, the institute, उन्होंने कहा कि like you should not think of anything else which is given in the passage. जो पैसेज में लिखा है आपको उसको सच मानना है, don't overthink over that. अबे डेफिनेटली सच मानना है, लेकिन दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा ना। अगर सब पैसेज को पढ़ के कर लेते तो फिर तो सब फोड़ देते पूरा सेक्शन।
पैसेज को पढ़ के इन्फर करने की जो एबिलिटी है वो टेस्ट कर रहा है, और उसके लिए आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। वो पैसेज में आपको क्या ही मिल सकता है, पूरा सवाल मतलब मिलता है, बहुत सारे केसेस में डायरेक्टली वो पूछ लेते हैं, उन केसेस में तो आपको दिया ही हुआ है, लेकिन कुछ केसेस में आपको अपनी इंटरप्रिटेशन लगानी होती है, और उस इंटरप्रिटेशन लगाने में आपको अपना दिमाग लगाना होता है, और वो डेवलप तभी होता है जब आप सोचोगे चीजों के बारे में। ऐसा नहीं है कि पता नहीं यार, मैं ठीक है, आप ये जो एडवाइस है ये कहां तक अप्लाई कर सकता है, आपको कोई भी एनएलयू चाहिए अगर, तब हो सकता है, तब आप जो पैसेज में गिवन ही है उसी को अप्लाई कर रहे हो। आप कितना 50 में से 30 तो ले ही आओगे, नहीं 50 नहीं है आजकल, कितना है 35 का है ना लीगल, या 40 कितने का? भैया रेंज बस 35 to 40 होता है, कभी 35 to 40, हाँ। 35 to 40 है, तो आप उसमें से अबाउट 25 इजीली ला सकते हो। लेकिन ये जो 10 बाकी के सवाल है, एक्चुअली 10 नहीं है, 5 है, आपको 30 ले आओगे तो आपको टॉप 3 या टॉप 4 एनएलयूज जाने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आपके बाकी सेक्शंस एवरेज भी हैं तो उस चीज के लिए आपको ये जो 5 सवाल है उनके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। भैया आई एम नॉट टेलिंग इन दैट सेंस, लाइक तो रीजनिंग है तो मैं समझ सकते हैं अपन कि आप पे अप्लाई। हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू योर पैसेज और नॉट। आई एम आल्सो सेइंग रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू द पैसेज ओनली। I'm not, even in the doubts that I answer on the group, I always say restrict yourself to your passage, but use your mind while deciding कि क्या आंसर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस में क्लियर होता ही नहीं है पैसेज से, और वही डिफरेंशिएटर क्वेश्चंस बनते हैं आपके सेक्शन के लिए। ठीक है, my the way of conveying that was that, क्योंकि आपको अगर no contempt to these colleges like DSNLU, Jabalpur or any other college, but if you want to get there, then sufficient. Just read the passage, whatever is clear from the passage, mark it, whatever is not understandable, leave. Very easy. Nothing better than that. If that's your goal, and it can be your goal, I'm not saying it shouldn't be your goal, but it's up to you. Any other doubt? How was today's class in comparison to the previous class, in which we didn't have a discussion? You found it better? ज्यादा इंटरैक्टिव है ये वाली, ये पसंद है ना आपको? क्योंकि हाँ। मैं बता रहा हूँ, आपने जो फीडबैक फॉर्म दिया था उसमें मुझे ये पता लगा कि आपको इंटरैक्टिव सेशंस कुछ लोगों को नहीं पसंद है, उनको डायरेक्ट पढ़ाना पसंद है, पर अगर मेजॉरिटी ये चाहती है कि मैं इंटरैक्टिव रखूं सेशंस को, तो मैं इंटरैक्टिव ही रखूंगा। भैया इंटरैक्टिव ठीक है, एटलीस्ट हम बोर नहीं होते, यू नो। या एग्जैक्टली बोर, और भैया दिमाग भी चलता है थोड़ा सा। हाँ, और कोई डाउट या कुछ है आपके मन में, पूछ सकते हो अभी। 4 मिनट में आपको जाना है ना, कोई सेशन है आपका एनएलयूज के ऊपर, मैंने सुना। उसका लिंक हो तो भेज देना मेरे को, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। कैंसिल हो गया भैया, पोस्टपोन हो गया भैया की बहन का बर्थडे है। ओके, कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर सकता हूँ अभी? आप क्लास तो खत्म हो गया।